guys, welcome back to the Topper Squad Class 12th English Board Special. So today we will do Vistas book chapter 3 English Journey to the End of the Earth. Now, Rankers Topper Squad series we will start. So this is a full one shot of chapter 3 Vistas. We will complete the backlog of book 1 and 2, that is revision blockbuster. So this is the lecture roadmap that how we are going to study and the backlog strategy. The core mission, part 1, complete coverage of Vistas, means we will do the complete coverage of the Vistas chapter 3 journey to the end of the earth. That is by uh, Tishani Doshi, circuited and verified lecture elements, ठीक है? And then part 2 backlog eraser, a comprehensive both revision of all completed chapter that we have completed. No answer shown in line on question slides. Okay. So book 2 Vistas chapter 1 third level, chapter 2 Tiger King that we have done. And book 1 Flamingo chapter 1 last lesson, chapter 2 Lost Spring, and chapter 3 Deep Water we have done. Flamingo poem 1 My Mother at 66, and Flamingo poem at Keeping Quiet also we have done. So all that we have done, I have brought a backlog eraser or backlog strategy, you can tell. In that there is so many question answers you should do, and it's very important for MP board. It's very important for MP board. Okay, so without wasting our time, we will just start the lecture. So start the lecture. At Antarctica, the journey begins. Okay, the ultimate geological vault, exploring the past, present and future of our climate. तो ये जो ऑथर है या नरेटर बोल लो, ये एक्सप्लोर करने गई थी अंटार्कटिका. क्या देखने गई थी? पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. जो क्लाइमेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है वो देखने गई थी. If you want to know more about the planets past, present and future, if you know if you want to know more about the planets past, present and future, the Antarctica is the place to go. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें क्लाइमेट का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखना है कि क्या था, क्या है और क्या रहेगा, तो जो एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो. कि आप वहाँ जाओ और देखो कि पहला क्लाइमेट क्या था, फिर दूसरा, फिर तीसरा. अभी तो डिवीजन हो गया है, तो पहले तो बेस्ट प्लेस एंटार्क्टिका ही है, जब डिवीजन नहीं हुआ था. ठीक है, टू विजिट एंटार्क्टिका इज टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ टुक इट्स स्पेस. जब आप एंटार्क्टिका को देखोगे, विजिट करोगे, तो टू विजिट एंटार्क्टिका टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ टुक इट्स स्पेस, मतलब अर्थ ने कैसे उसकी जगह बनाई, वो सब आप वहाँ देखोगे. हाउ इकोसिस्टम इवॉल्व एंड वेयर आर ग्लोबल क्लाइमेट इज हेडिंग, मतलब कहाँ अपना ग्लोबल क्लाइमेट हेड हो रहा है, मतलब कहाँ है अभी, क्या चल रहा है, उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम देखेंगे. और कैसे देखें, अर्थ का शेप क्या है, जैसे अर्थ का शेप जियोइड है. ठीक है, और फिर मतलब एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू सी द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ठीक है, तो एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस. ओके, सो ये चैप्टर भी इसी के बारे में, आर्ट ऑफ हिस्ट्री, गोंडवाना. तो 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent named Gondwana. अच्छा, 2 मिनट में इसको वो कर देती हूँ. हाँ, a giant amalgamated southern supercontinent named Gondwana did indeed exist, centered roughly around present day Antarctica. जैसे अगर हम देखें कि उस टाइम पे 650 मिलियन ईयर्स अगो एक जायंट अमालगैमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था. उसका नाम क्या था? ये जो अमालगैटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का नाम यही था, गोंडवाना. उसमें हमने देखा, उसमें उस ऑथर ने देखा था सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट. जो प्रेजेंट डे अंटार्कटिका है वहाँ उसको पहले बोलता था गोंडवाना.
centered roughly around present Antarctica. Okay, now warm and diverse climate. The warm and diverse climate things were quite different than humans haven't arrived hadn't arrived मतलब तब के समय में ये तब की बात हो रही है जब ह्यूमंस अराइव हुए नहीं थे ह्यूमंस hadn't arrived on the global scene मतलब ह्यूमंस आए नहीं थे ग्लोबल सीन पे and the climate was much warmer hosting a huge variety of flora and fauna देखो ह्यूमंस तब मतलब प्रेजेंट होंगे पर कम से कम तो ह्यूमंस प्रेजेंट नहीं थे फ्लोरा फोना एनिमल्स प्लांट्स और ये सारी वेराइटीज थी ये सारी चीज़ें थी ठीक है तो तब के समय में अगर आप देखोगे ना अगर आप जैसे अगर आपको जानना है कि क्लाइमेट कैसा होता है क्या अभी तो नहीं मतलब पहले के समय में ही होता था कि हम देख सकते जैसे ऑथर बात कर रहा है कि हम देख सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्लाइमेट का कैसे हो सकता है जैसे इसने गोंडवाना बताया कि जो गोंडवाना है वो इंडीड एग्जिस्ट करता है उसका जो सेंटर्ड है अगर मैं बताऊं तो रफली अराउंड अभी वो प्रेजेंट है अंटार्कटिका में ठीक है और तब जब वो गई थी तब के समय में ह्यूमंस थे पर लिमिटेड कम थे इतने सारे ह्यूमंस अराइव नहीं हुए थे इन द ग्लोबल सी ठीक है और जो क्लाइमेट था वो थोड़ा वार्मर था और ज़्यादा वेराइटीज़ थी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जैसे आज के समय में देखें तो हम फ्लोरा एंड फौना मतलब इतनी वेराइटीज़ नहीं है प्लांट्स की है पर एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ठीक है तो इसलिए फिर बोल रहा है द ग्रेट सेपरेशन फॉर 500 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना थ्राइव्ड but around the time the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the land mass was forced to separate into countries shaping our modern age. मॉडर्न ग्लोबल अब ये बता रहे हैं कि 500 मिलियन ईयर्स में जब गोंडवाना चला थ्राइव हो गया था तो उसके जब जैसे डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए मतलब डायनासोर्स की एज खत्म हो गई डायनासोर्स अभी आप देख रहे हैं अभी आप डायनासोर्स नहीं देख सकते क्योंकि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए मरने लगे थे अभी आप डायनासोर्स नहीं देख सकते कि डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं ठीक है तो वैसे वो भी वाइप्ड आउट हो चुके हैं एंड द एज ऑफ मैमल्स की एज आ गई मतलब ह्यूमन बीइंग्स आने लगे ह्यूमन बीइंग्स की एज आ गई मतलब मॉडर्न डे आ गया सारी जो कंट्रीज थी वहाँ से सेपरेट होने लगी ठीक है तो ये जो लैंड मास था वो फोर्स हुआ कि भाई उसको भी सेपरेट टूटना पड़ेगा सेपरेट होना पड़ेगा तो शेपिंग आर मॉडर्न ग्लोब जो अभी का ग्लोब है ना वो अभी तो बहुत सारी चीज़ें सेपरेट हो चुकी है अंटार्कटिका में भी ठीक है फिर जियोलॉजिकल ड्रिफ्ट माइंड ब्लॉगिंग रियलिटीज ये माइंड ब्लॉगिंग रियलिटीज अंडरस्टैंडिंग Cordilleran folds how the globe transitioned to its modern layout the Himalayas India push अब देखो क्या हुआ था जो हिमालयस है जो इंडिया था वो पुश नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थवर्ड्स जो है तो वो इंडिया जो था नॉर्थवर्ड्स पुश हुआ ये दो हिमालयस है तो इंडिया जो है नॉर्थवर्ड्स ऐसे पुश हुआ ऐसे नॉर्थवर्ड पुश हुआ jamming against Asia to buckle its crust and from the Himalayas मतलब एशिया में जामिंग एशिया को जाम कर दिया जामिंग एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट जो क्रस्ट होता है टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयास से ऐसे माउंटेन थे तो पुश हुआ और ये नदन साइड ड्रैग पैसेज साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वो ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका ये जो साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका ये ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका opening the drag passage to create a cold circumpolar current ठीक है एक कोल्ड सर्कमपोलर करंट होता है तो जिससे वो ड्रैग आउट हो जाए मतलब चिपक जाता है फ्रिजिड डिसोलेशन कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड जो एंटार्कटिक फ्रिजिड डिसोलेशन है ना तो जो बोल रहे हैं कीपिंग जो अंटार्कटिका है ना वो अभी फ्रिजिड हो गया है हार्ड हो गया फ्रिजिड डिसोलेट मतलब डिसोलेट हो गया एंड इन दी एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड है नीचे सबसे नीचे बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में अंटार्कटिका ठीक है
फिर द चिलिंग रियलिटी, अगर हम चिलिंग रियलिटी देखें तो जायंट पिंग पोंग बॉल, जो पिंग पोंग बॉल, जो जायंट पिंग पोंग बॉल है वो क्या है? A visceral description of the sensory deprivation expression. ओके, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो दिख जाए, ठीक है। क्या लिखा है? फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडिया 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored in a is a chilling prospect। इसमें बोला इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। तो भी बोल रहा है, देखो इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या दिया है कि इट्स लाइक देखो, ये लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, जो डिवाइड होता है पिंग पोंग बॉल ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिल बोर्ड्स, बिल्डिंग्स, तो ये सब है। मतलब ना कि उधर ट्रीज है, ना कि उधर फ्लोरा फौना जो भी नहीं है, बिल बोर्ड्स भी नहीं है वहाँ पे, नो ट्रीज नथिंग, वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स है, वहाँ पे सिर्फ बिल बोर्ड्स है, जो हम अभी प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो, ठीक है। अगर आप देखो ना कि ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन ही हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग पेड़ काट रहे हैं। पहले देखो, पहले हमने पढ़ा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा चिपकू मूवमेंट, जिसमें पेड़ काटने नहीं दिया जा सकता, पेड़ पेड़ काटने नहीं दिया जाता। वो लोग जो है वो ऐसे पेड़ के इधर खड़े हो जाते हैं, पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटना, पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटना, ऐसा होता है। पर अब क्या हो रहा है? अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स बनाने के कारण पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद हम पेड़ पौधे सब कट रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन, ये सब, नो ट्रीज, पहले तो फ्लोरा फोना हमने वैरायटी में देखा था ना, अब कोई ट्रीज नहीं है, सिर्फ बिल बोर्ड्स है, बिल्डिंग्स और ये सब है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर, मतलब आपने पूरा अर्थली सेंस, जो सेंस बनता है कि फ्लोरा फोना है, और मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं आपके अराउंड, बहुत सारी ट्रीज हैं आपके अराउंड, मतलब तो ऐसा लगता है ना, हाँ ग्रीनरी है, अच्छा है, नेचर अच्छा है, और बहुत सारे एनिमल्स चिरप चिरप कर रहे हैं, बर्ड्स चिरप कर रही हैं, कुकड़ुकू, और मियाओ मियाओ एनिमल्स, मतलब कैट एंड भौ 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 डॉग कर रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल्स कर रहे हैं अपने पास, मतलब नेचर की आवाज़, वो आप सब खो चुके हैं। जब आपने एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लग गए, ट्रीज है ही नहीं, ठीक है। तो स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, ठीक है, midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries, largest recorded being size of Belgium। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट, अब जियोलॉजिकल ब्लिंक। अब जब ह्यूमंस आने लगे, तब के समय में ह्यूमंस कम थे, ह्यूमंस थे पर कम थे, पर अब ह्यूमंस आने लगे तो ह्यूमंस के लिए बिल्डिंग्स, उनका उनका घर, जो भी उनको ऑफिसेस बनाने हैं, जो भी बनाना है, तो जिससे अब पेड़ कट रहे हैं, एनिमल्स डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, जो भी हंटिंग गैदरर्स है वो हंटिंग कर रहे हैं, एनिमल्स डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, मतलब एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पर तब के समय पे जब अंटार्कटिका था, मतलब जब ये ऑथर बात कर रही है, तो जब अंटार्कटिका अच्छा था, तो हम उसमें देख सकते थे कि अभी तो अंटार्कटिका डिवाइड हो चुका है, तो उसमें उस समय हम देख सकते थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्लाइमेट कैसे होगा। पेंगुइन्स थे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें थी, आइस था, आइस थे, आइस मेल्ट होना देखते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट जियोलॉजिकल ब्लिंक। ह्यूमन इम्पैक्ट जियोलॉजिकल ब्लिंक, पाल्ट्री 12,000 years, a dis the the disproportionate footprints of humanity on earth. A paltry 12,000 years, human civilizations have been around for a mere fraction of the geological clock, barely a few seconds. Dominance over nature in this short time where we have managed to create quite a ruckus, itching over dominance with village, town, cities and mega cities। मतलब हमने
पेड़ पौधे काट कर सिटीज़ बनाने शुरू कर दी, टाउन्स बनाने शुरू कर दिए, विलेजेस बनाना शुरू कर दिया। हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ट्रीज़ भी ज़रूरी हैं, ट्रीज़ भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो द CO2 ब्लैंकेट, अन अनमिशिएटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आपके पास आसपास पेड़ नहीं होंगे, पेड़ अगर आपके पास आसपास पेड़ नहीं होंगे तो हाउ, मतलब आप इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हो। स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब श्योर धीरे धीरे होगा पर इंक्रीजिंग जो ग्लोबल टेम्परेचर है आप उसको बढ़ा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। फिर आता है ये देखो, ये डिबेट्स होती है, कॉन्टेस्टेड डिबेट्स होती है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, ये डिबेट्स हो रही हैं, कंटेस्टेड डिबेट्स। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टरप्टेड, क्या वो डिस्टर्ब होंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, कि क्या ये एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा एंड वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। वी डोंट नो। द स्टूडेंट्स ऑफ ऑन आइस प्रोग्राम, अब देखो हुआ क्या था, एक जो ऑथर है वो अपने साथ चार पांच, मतलब बहुत सारे बच्चों सॉरी बच्चों को लेके आई थी, मतलब बहुत सारे बच्चों को लेके आई थी अपने साथ। एक प्रोग्राम था कि जिससे बच्चों को बताएं कि ऐसा इन्वायरमेंट, मतलब अंटार्कटिका में लेके गई थी कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिस टाइम नो ह्यूमन पॉपुलेशन, कार्बन एक्टिविटी, ठीक है। तो वाई इज देखो, अब क्या हुआ, तो अब स्टूडेंट्स इसको एनवायरनमेंट को अच्छे से जाने, क्लाइमेट को अच्छे से जाने, अच्छी चीज़ें सीखे। तो वो चाहती थी जो ह्यूमंस है, जो पीपल है, जो बच्चे उनके साथ आए हैं, वो हर चीज़ अच्छे अच्छे से सीखे, ठीक है। तो इसमें देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम, वाई इज एंटार्क्टिका प्रिस्टाइन, ठीक है। तो वाई इज एंटार्क्टिका प्रिस्टाइन, एंटार्क्टिका प्रिस्टाइन क्यों? द वैल्यू ऑफ कीपिंग अ कॉन्टिनेंट फ्री फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स, तब जो एंटार्क्टिका था वो फ्री फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स था, उसमें ह्यूमन रहते ही नहीं थे, बस विजिट करने आते थे, देखने आते थे, या हिमालयस पे चढ़ने आते थे, बाकी वहाँ पे थे ही नहीं ह्यूमंस, वहाँ पे एनिमल्स थे, मैमल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ह्यूमन पॉपुलेशन थी नहीं, कार्बन आर्चीव्स होनी नहीं थी। रुक जाओ बता रही, नो ह्यूमन पॉपुलेशन, एंटार्क्टिका रिमेन्स प्रेस्टाइन बिकॉज इट हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन रह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड है, मतलब आप जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत ठंड है, वहाँ पे पूरी आइस 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 जमी हुई है, बहुत ठंड है, वहाँ पे धूप भी नहीं निकलती होगी, पता नहीं, नहीं धूप भी नहीं निकलती होगी, बहुत ठंड है, मतलब बहुत बहुत ही ठंड है, तो वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। Carbon archives, more importantly, it holds in its ice cores half million years old. Carbon records trapped in its layer of ice. जो कार्बन आर्चिव्स थे, मतलब इम्पोर्टेंटली जो कार्बन थी वो उसने क्या किया था, उस लेयर्स में ट्रैप्ड है। जब आप आइस को देखो ना तो जो कार्बन है वो उसकी लेयर्स में ट्रैप्ड है, जैसे लिखा है, मोर इम्पोर्टेंटली इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर्स अगो। जब वो अपना आइस कोर्स में देख रही थी, आइस कोर्स, तो कार्बन रिकॉर्ड्स जो थे, जो कार्बन के रिकॉर्ड्स, मतलब एविडेंस थोड़े थोड़े पाए गए थे। तो कार्बन जब रिकॉर्ड इनटू द लेयर्स ऑफ आइस, वो जो हमने हिस्ट्री में पता ना स्ट्रैटिग्राफी, तो लेयर्स ऑफ आइस में यहाँ पे तो ऊपर कार्बन जमा हो, यहाँ पे ऊपर कार्बन जमा, ऐसे। To study and examine the Earth's past, present, and future, Antarctica is the best place to go. If you want to study about the Earth, yeah, examine about the Earth, so you should go to Antarctica. It's a very good place you can discover. Means हाँ, Earth आपको पता चल सकता है Earth's past, present, and future. एंटार्क्टिका इज़ वेरी बेस्ट प्लेस, पर हाँ वहाँ पे बहुत ठंडी है, पहली बात, ठीक है। वेसल वेसल शोकाल्सिकी
aims to take high school students to the ends of the world and provide them with inspiring educational opportunities to foster understanding and respect for our planet. तो ये क्या किया इस ऑथर ने कि लोगों को, बच्चों को, ये चाहती थी कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है वो चाहती थी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जाए एंड प्रोवाइड देम, मतलब इनको इंस्पायरिंग एजुकेशन दे, ना कि ये सिर्फ सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हों, बल्कि जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स आवर प्लानट अर्थ, उनकी तरफ जो उनकी रिस्पेक्ट है वो और, मतलब सिर्फ वो पढ़ाई में ही अच्छे ना हो, वो हर एक चीज़ में अच्छा करे। अगर उनको मतलब वो यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाए, वो पेड़ पौधे ना काटे, जो मतलब इंस्पायरिंग एजुकेशन, वो ये देखो सुनो, वो ये नहीं चाहती थी कि सिर्फ बच्चे जो है पढ़ाई में अच्छे हो, नहीं, वो पढ़ाई में तो अच्छे हो, पर वो ये चाहती थी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फॉर द नेशन अर्थ वो और अच्छी हो, वो और मीनिंगफुल हो, और अच्छी हो, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ टुवर्ड्स द अर्थ वो अच्छे से निभा सके, ठीक है। और जो भी लाइक मतलब, हाँ, मतलब यही था कि वो अच्छी, मतलब अर्थ को गंदा ना करे, अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखे। तो वो यही चाहती थी, उनको एम यही था कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब एंटार्क्टिका लेके जाए और एक इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएँ कि जो लोग हैं टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, मतलब उनके मन में उनकी वो उसमें जाग जाए कि भाई प्लैनेट भी कुछ है और हम प्लैनेट को भी समझें, प्लैनेट की रिस्पेक्ट करें, ना कि प्लैनेट को डिग्रेड करें, मतलब ना कि प्लैनेट को डैमेज करें, एनवायरमेंटल डैमेज बताए, ठीक है। तो उसका ये मेन एम था, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, जी ऑफ ग्रीन्स विजन, टारगेटिंग द फ्यूचर पॉलिसी मार्कर्स, द लॉजिक बिहाइंड फोकसिंग ऑन हाई स्कूल चिल्ड्रन। लॉजिक क्या था उनका कि वो हाई स्कूल चिल्ड्रन के को ही क्यों ले गई, क्योंकि लाइक हेडेड बाय Geoff Green, a Canadian who got tired of carting rich, retired curiosity, seeking celebrities who could only give back in a limited way. The perfect age offers a life changing experience at an age when high school students are already to absorb, learn and most importantly act. मतलब हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ना अच्छे से समझ भी पाते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, और वो ये भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रेडी होते हैं कि जो भी मैम बोल रही है वो अच्छी बात है, तो वो उनको तब के ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो आप उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो तब वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि वो जो अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं ना वो उनकी आदत बन जाती है। जब मैम उन्हें कुछ बोल रही है या ऑथर उन्हें कुछ बता रहा है, तो बता रही है या बता रहा है, जो भी कर रहा है, तो जो भी बता रहा है, तो ना तब उनका क्या होता है कि तब उनका स्टार्टिंग स्टेज होता है। तो दिमाग में ना वो सारी चीज़ बैठ जाती है, और जब बैठ जाती है तो फिर वो सारी चीज़ें करने लगते हैं, और जब वो लोग करने लगेंगे तो सारे लोग भी उनको देखकर सारे लोग फॉलो करेंगे। तो जिससे उन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पे ये हुआ, तो दे आर रेडी टू अब्ज़ॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, मतलब उस पे एक्ट करने के लिए, सीखने के लिए, उस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करने में, अपने आप को उसको ढालने में वो सक्षम हो जाते हैं, मतलब वो हो जाते हैं, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, दे आर रेडी टू लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर रेडी टू एक्ट ऑन इट। मतलब जो भी उसका एक्ट है, पेड़ नहीं काटना, एनिमल्स को ये सेफ रखना है, ये सब वो उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Retreating glaciers. It is easy to be base blast about polar ice caps melting sitting in a comfort zone. But here you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing. अब आप जैसे अंटार्कटिका में जाओगे तो आप देख सकते हो कि आइस कैसे मेल्ट हो रही है। आप अभी अपनी कंफर्ट जोन में बैठे हो, तब आप वहाँ जाओगे तो आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो आँखों से कि आइस कैसे मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर्स कैसे रिट्रीटिंग हो रहे हैं, आइस कोलैप्स कैसे हो रही है, वो सब आप देख सकते हो। मतलब आप नेचर का मज़ा उठा सकते हो, नेचर को देख सकते हो, अर्थ
को एग्जामिन कर सकते हो, उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देख सकते हो। तो एंटार्क्टिका इज वेरी बेस्ट प्लेस, इज अ गुड प्लेस। पैराबल ऑफ द cytoplankton, okay, cytoplankton, gases of southern ocean, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक फाउंडेशंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, माइक्रोस्कोपिक psychoplankton, okay, psychoplankton are those single celled plants of the sea that nourished and sustain the entire southern ocean's food chain। मतलब ये साइकोप्लांटन ऐसी सिंगल सेल्ड प्लांट्स है ऑफ द सी, मतलब सी में है, जिनको नरिशमेंट एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन, जो नरिश करते हैं एंटायर जो सदर्न एशियन फूड चेन है उस सबको नरिश करते हैं, नरिशमेंट देते हैं। और ये सी के अंदर रहते हैं साइकोप्लांटन, ठीक है। और ये किसकी सन की एनर्जी यूज़ करते हैं टू एसिलिमेट, मतलब देखो सन की एनर्जी यूज़ करते हैं कि जिससे उनको कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी उनको खाने बनाने में मदद होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा था कब पर क्लास किसमें पढ़ा था, नाइन्थ छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना फोटोसिंथेसिस। तो जब जो प्लांट्स हैं वो सन की रोशनी लेते हैं, सन की लाइट, सनलाइट से खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं जिससे हम लोग ब्रीथ कर सके, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आया क्या कि जो सन की एनर्जी यूज़ करते हैं, मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट सन की एनर्जी से खाना बनाता है, ये तो हम पता है। तो प्लांट सन की रेस से खाना बनाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, हमने ये देखा था। फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट देयर एक्टिविटीज, इम्पैक्टिंग ऑल मरीन एनिमल्स, बर्ड्स एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। अब अगर हम ऐसी पेड़ काटते रहेंगे, ऐसी एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते रहेंगे, तो जो मतलब जो पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम जिसको ब्रीथ करते हैं, जिसके थ्रू हम जी रहे हैं, वो जो और ओजोन लेयर भी डिप्लीट होना शुरू कर देंगी अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं करेंगे। मतलब जो क्या बोलते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कुछ जलाते रहेंगे, पेपर पोपड़ जलाते रहेंगे, ये सब जलाते रहेंगे, तो कुछ नहीं है, मतलब तो अपना ही इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, अब हमारी मदर अर्थ दुखी होगी। ये बोलते हैं ना कि एनीथिंग एक्सेस इज नॉट गुड, मीन्स क्या बोलूँ मैं उसका, मीन्स अगर हम कुछ चीज़ लिमिट के बाहर कर दे, मतलब लिमिट क्रॉस कर दे उसकी, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो इसलिए हमें ना संभाल के हर चीज़ करनी चाहिए, लिमिट में करनी चाहिए, वी शुड नॉट क्रॉस आर लिमिट्स, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग, इफ यू विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, इफ यू विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, ठीक है, इसमें लिखा है इफ यू विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल विल फॉल इनटू प्लेस। मतलब ये मेटाफोर है, अल्टीमेट मेटाफोर है। क्या अल्टीमेट मेटाफोर ये है कि इफ यू विल सी मीन्स अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक बड़ी थिंग, मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर आप छोटी लेवल पे चीज़ों का ध्यान रखते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आप बड़े अब आपकी आदत हो गई कि आप ध्यान रखते हो, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जब उसको सॉल्व करोगे, तब उसका सल्यूशन भी अच्छे से निकाल पाओगे और उस पर एक्ट भी अच्छे से जल्दी से कर पाओगे, इम्प्लीमेंट भी जल्दी से कर पाओगे। तो ये बोल रहा है। वॉक ऑन द ओशन, एपिक एपिग्राफी, wedged at 65.55 degrees south latitude. A sudden stoppage leading to a life changing walk. The vessel, Shoka Slavy, had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, preventing future movement. देखो, हम देखो वॉकिंग आइस, ऑल 52 ऑफ अस, मतलब उनको मिलाकर जो सारे 52 थे,
उन्होंने क्या kitted out in the core. Tex and Lars walked on a stark, मतलब अगर आप उस आइस पे चढ़ोगे ऐसे ऐसे, तो वो ट्रैकिंग करना लिटरली बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आइस स्लिपरी होती है. Below our feet, a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. मतलब 180 meters of living जो breathing salt water है वो था. और ऊपर हम लोग चल रहे थे, नीचे वो और ऊपर हम. सोचो कितना डेंजरस था. The seals, crab eater seals were stretching and swinging themselves on ice floors, much like stray dogs will do under the shape of a banyan tree. A revelation everything indeed connects. मतलब अब देखो हुआ क्या, वहाँ पे जो छोटे छोटे क्रीपर्स नहीं, छोटे छोटे सील्स थे, छोटे छोटे स्नेल्स थे, वो सब ना जैसे डॉग होते हैं ना ऐसे स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, तो वैसे ही वो लोग भी वहाँ पे जो चल रहे थे ना, वो लोग कौन लोग 52 ऑफ अस में, तो जो स्टूडेंट्स चल रहे थे, तो जो आइस में जो अपने आप को ऐसे स्ट्रेच कर रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रेच जैसे वो नहीं करते डॉग्स, ऐसे ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी सील्स और ये सब भी वहाँ पे स्ट्रेच कर रहे थे, जैसे डॉग्स बैनियन ट्री के अंदर स्ट्रेच अंडर शेड में आकर अच्छे इतना स्ट्रेच करते हैं, वैसे ही वो भी स्ट्रेच कर रहे हैं. तो देखो कितना मुश्किल है, नीचे मतलब आइस, आइस के ऊपर उनका पैर, और नीचे 180 मीटर लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसी आइस में ये जो क्रिएटर सील्स थे वो सब आराम कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेच कर रहे हैं. Theme and character sketch. Oh my god, chapter is completed. Tushani Doshi. Core themes, major conceptual pillars of the travelers मतलब ये जो जो ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं लोग उन वो है. इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये चैप्टर आपको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बताते हैं कि आपको इन्वायरमेंट को अच्छा रखना चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए. अगर आपको अर्थ के बारे में एग्जामिन करना है तो एंटार्क्टिका इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेस टू गो. बट अब जो एंटार्क्टिका है वो डिवाइड हो चुका है, जो मैंने बताया था कि इंडिया ऐसे वो हो गया है, नॉर्थ एशिया मिल चुका है और ये सब हो गया है, तो एंटार्क्टिका भी के समय में डिवाइड हो चुका है. इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, स्प्रेडिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ग्लोबली, मतलब ये चैप्टर जो है ये बता रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक ना एक दिन जो ये अर्थ है वो तबाह हो जाएगी. अगर आप कचरा यहाँ वहाँ फेंकोगे, इन्वायरमेंट को सही नहीं रखोगे, मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं करोगे, इन्वायरमेंट को सही अच्छे से रखोगे, हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दोगे, तो ये जो एनवायरनमेंट है वो कभी डिग्रेड नहीं होगा. क्लाइमेट चेंज एंड इट्स प्रोफाउंड इफेक्ट्स. यूनिवर्सल कनेक्शन, रियलाइजिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड बैलेंस. कैरेक्टर स्केच, जो तुषानी दोषी का जो कैरेक्टर स्केच है वो देखो. पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ आर ऑथर एंड एक्सप्लोरर. कंसर्न, कि वो बहुत कंसर्न्ड है, थॉटफुल है अबाउट द इन्वायरमेंट, और बच्चों हाई स्कूल के बच्चों को बता रही है कि, और वो हाई स्कूल के बच्चे, मतलब हाई स्कूल के बच्चे ही मेन टारगेट क्यों थे, क्योंकि तब वो रेडी थे, दे आर रेडी टू लर्न, दे आर रेडी टू ऑब्जर्व एंड दे आर रेडी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो, एक्ट ऑन इट. बहुत एडवेंचरस बाय नेचर थी, स्ट्रॉन्ग थी, रेजिलेंट थी, अडेप्टेबल, वो इन्वायरमेंट को भी अडेप्ट करना होता है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है. फ्रेंडली, चीयरफुल एंड एंथुसियास्टिक. ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केच है ऑफ तुषानी दोषी. अब ये विस्तार चैप्टर थी, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. Okay, so why does Tushani Doshi call Antarctica the place to study the Earth's past, present and future? क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मतलब वो लिटरली बहुत अच्छी जगह है जिसमें आप अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के क्लाइमेट चेंज देख सकते हो. कंसिडर द
pastorine nature of the continent, the lack of human population, वहाँ पे lack of human population था, कार्बन एंट्राइन था, एंड कार्बन एनवायरमेंट, जो कार्बन आइस के आइस ट्रैप्स में जो कार्ब आइस के लेयर्स में जो कार्बन था, जिससे हम जिसके एविडेंस हमें मिले, एंड लेस ट्रैप्ड इट्स डीप आइस वाटर लेयर्स। ठीक है, जो डीप वाटर थी वो, हाँ ठीक है। What was the central objective of Geoff Green Students of ICE program? तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या था, वो चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स जब बड़े हों तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट, इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्ट कर सके, हर चीज़ नेचर को वो अच्छा बनाने का कोशिश कर सके। ठीक है, तो ये देख लेना। और ये चैप्टर 3 इंटरैक्टिव एमसीक्यूज है, फिर ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग्स है। हाँ, अब मैं आपको बता रही थी बैकलॉग स्ट्रेटेजी, तो यही है अपनी बैकलॉग स्ट्रेटेजी की विस्तार चैप्टर 1 द थर्ड लेवल जो हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस है और एक एमसीक्यूज है, तो ये कर लेना। ठीक है, फिर चैप्टर 2 द टाइगर किंग के 2 क्वेश्चंस है और एक एमसीक्यू है, ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी यही बैकलॉग स्ट्रेटेजी है, जिससे आप अगर आप अपना बैकलॉग बना लेते हो ना, तो ये बैकलॉग कम कर देगा कि आप क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपको पूरा जो चैप्टर है वो पूरा दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। तो फ्लेमिंगो चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, और लॉ स्प्रिंग के क्वेश्चन से एमसीक्यूज है, ये देख लेना। डीप वाटर के भी है, माई मदर 66 के भी है, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, और दिस इज़ द अल्टीमेट मास्टर एवेल्यूएशन, अगर आपको अपना चेक करना है कि क्या, अच्छा ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है, नहीं नहीं नहीं, तो अपने आप को मार्क्स देने हैं कि अपने आप को प्रेफर करना है कि भाई मैं कितना, मतलब इंग्लिश में कितना बेटर है, सही भी कर रही हूँ नहीं कर रही, अपने आप को चेक करने के लिए, रियलिटी चेक देने के लिए। So questions and doubts, if you have any doubt, write in the comment section. We left no stone unturned to secure your 100 out of our 100 out of 100 in board English. Drop your queries in the comment below. Like, goal is 500 out of 500 in MP board and CBSE too. Share with friends, subscribe. Okay, so subscribe and don't forget to share, subscribe, share, like, subscribe my channel. You are not subscribing my channel, please do it, bro. Subscribe it now, just now. Okay, so like, goal is 500 and share it with your friends and subscribe it right now, and join the topper squad. Let's conquer the class 12 boards 2026-27 together. So bye bye guys, love you all, and do this backlog strategy and that chapter 3 that we have done today. We have completed that chapter one shot. So do the question answers right now. Okay, so bye bye everyone, love you all, bye bye, bye bye, bye bye. Do like, share, subscribe my channel, okay, and do this question answers.